آپ پاک اتھارٹی کے منظوری کا معاملہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے بل گورنر کو بھجوا دیا ہے۔ گورنر پنجاب نے بل کی منظوری دے دی۔ اب اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اتھارٹی صوبے میں صاف پانی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی لگائے گی۔ اتھارٹی کو چلانے کے لیے بورڈ بنایا جائے گا۔ سربراہی چیئرمین کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ پاک اتھارٹی کے منظوری کا یہ معاملہ ہے جس پر اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے گورنر پنجاب کو بل بھجوا دیا ہے۔ گورنر پنجاب نے اس بل کی منظوری بھی دے دی ہے۔ اب اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور اتھارٹی صوبے میں صاف پانی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی لگائے گی۔ اتھارٹی کو چلانے کے لیے بورڈ بنایا جائے گا۔ سربراہی چیئرمین اس کی سربراہی کرے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اب جو ہے واٹر فلٹریشن پلانٹس بھی لگائے جائیں گے۔ بل کی منظوری دی گئی ہے گورنر پنجاب کی جانب سے۔ اتھارٹی صوبے میں صاف پانی اتھارٹی کی منظوری کا یہ معاملہ ہے جس حوالے سے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے یہ اس حوالے سے بل گورنر پنجاب کو بھجوا دیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ گورنر پنجاب نے بل کی منظوری دے دی ہے اور اس بل کی منظوری کے بعد اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور اتھارٹی صوبے میں صاف پانی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے گی۔ اتھارٹی کو چلانے کے لیے بورڈ بھی تشکیل کیا جائے گا یہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب نے بل کی منظوری دے دی ہے اور اس کی منظوری کے بعد اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اس حوالے سے اتھارٹی صوبے میں صاف پانی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی لگائے گی۔ اتھارٹی کو چلانے کے لیے خصوصی بورڈ ہے جو کہ تشکیل بھی دیا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ پاک اتھارٹی کی منظوری کا یہ معاملہ ہے جس حوالے سے بل جو ہے گورنر پنجاب کو بھجوایا گیا ہے اور اس بل کی منظوری کے بعد اتھارٹی واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے گی۔ شہباز شریف سے رابطہ ہوا، نہ کوئی ملنے کا ارادہ ہے۔ چودھری شجاعت کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ ہمارے خاندان نے کبھی منافقت نہیں کی ہے۔ سربراہ مسلم لیگ ق کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اچانک کوئی بھی کام کیا جائے پتہ نہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے یا پھر نہیں۔ چودھری شجاعت کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ تو کوئی بارگیننگ والی بات نہیں ہے، بلیک میلنگ والی بات نہیں ہو سکتی۔ منافقت کی ہمیشہ ہم نے تائید کیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی کہے کہ منافق ہے نہ جھوٹے ہیں، اور اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ شہباز شریف کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں، میں بھی یہاں پر، یہاں پر ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے اور بھی نہ شہباز شریف سے میری ملاقات ہوئی ہے اور نہ ہی میری ملاقات کا ارادہ ہے، اور میں تو سے یہ کہوں گا کہ نہ کوئی پیغام سے راشدار نہیں ہے، اپنے الیکشن میں بزی ہو گئے ہیں، کچھ نہیں ہونا۔ اس طرح کی جمہوریت تو ہوتی ہے جیسے چل رہی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں جمہوریت ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دن دہاڑے جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کی عزت محفوظ نہیں، اور اکانومی جو ہے ہماری گرتی چلی جا رہی ہے۔ مجھے تو کئی دفعہ یہ بھی خیال آیا ہے کہ شاید فائنانس منسٹر کو بننے نہ جائے، سب اپنے کام بولے نہیں، نیک نیتی کے ساتھ جو کام شروع ہو گیا تو سارے رات ٹھیک ہو جائیں۔ نیت ٹھیک نہیں ہے، اچھے آدمی ہیں، ایسی کوئی شک نہیں ہے، لیکن باقی لوگ تو محافظ کرتے رہتے ہیں۔ یہ چیف منسٹر عمران خان نے مقرر کیے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ افواہیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن جہاں تک میری اور شہباز شریف کی ملاقات کا تعلق ہے، نہ میری ملاقات ہوئی ہے اور نہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور جتنی دیر تک وہ منافقت باقی جو چیزیں انہوں نے کی ہوئی ہیں اس کا جواب پہلے دیں، پاکستان آ کے دیں، بار بیٹھ کے کوئی سوال جواب نہیں ہونا چاہیے۔ سربراہ مسلم لیگ ق کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، ان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف سے رابطہ ہوا ہے، نہ ہی کوئی ملنے کا ارادہ ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبائی وزیر کوآپریٹو مہر محمد اسلم بھروانہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ صوبائی وزیر نے محکمہ کوآپریٹو کارکردگی بارے وزیر اعلیٰ کو بریف کیا ہے۔ کوآپریٹو کے اثاثوں جائیدادوں پر قابض افراد کے خلاف کارروائی ہوگی، وزیر اعلیٰ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، جبکہ کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے محکمہ کوآپریٹو کا کردار اہم ہے۔ سردار عثمان بزدار کی جانب سے مزید کہا گیا کہ حکومت کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں ملاقات ہوئی ہے، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبائی وزیر کوآپریٹو مہر محمد اسلم بھروانہ کی ملاقات ہوئی ہے اور صوبائی وزیر نے محکمہ کوآپریٹو کارکردگی بارے وزیر اعلیٰ کو بریف کیا ہے۔
आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोट लखपत पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में 2 मनशियात फरोश खवातीन गिरफ्तार की गई हैं। रुखसाना और महविश नशावर इंजेक्शन फरोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। खवातीन के कब्जे से भारी मिकदार में नशावर इंजेक्शन और 50 से ज्यादा शनाख्ती कार्ड भी बरामद हुई हैं। मुल्जिमान से ATM कार्ड्स, मोबाइल फोन्स और हजारों रुपए नकदी भी बरामद कर ली गई है। और आपको ये भी बताएं कि उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। SHO मेहदी काजमी की जानिब से ये बताया गया है पुलिस ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के नतीजे में 2 मनशियात फरोश खवातीन को गिरफ्तार किया गया है और रुखसाना और महविश नशा आवर इंजेक्शन फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार की गई हैं। खवातीन के कब्जे से भारी मिकदार में नशा आवर इंजेक्शन और 50 से ज्यादा शनाख्ती कार्ड हैं जो कि बरामद हुए हैं। मुल्जिमान से ATM कार्ड्स, मोबाइल फोन्स और हजारों रुपए नकदी भी बरामद कर ली गई है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया गया है। SHO मेहदी काजमी की जानिब से ये बताया गया है। 2 मुल्जिमान हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। 2 खवातीन मुल्जिमान हैं जिन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है नशावर इंजेक्शन फरोख्त करते हुए। महकमा आपाशी में अफसरान की प्रमोशन। महकमा आपाशी में ग्रेड 17 के अफसरान की प्रमोशन कर दी गई है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महकमाना प्रमोशन कमेटी की सिफारिशात पर सेक्रेटरी आपाशी ने तरक्कियों की मंजूरी दी है। SDO को ग्रेड 15 से 17 में तरक्की देकर ग्रेड 18 में एक्सन बना दिया गया है, जबकि तरक्की पाने वालों में अदनान एक्सन मुकर्रर किए गए हैं, जबकि कसूर, मोहम्मद अतहर, नवीद अहमद, गुलाम रसूल और दीगर भी शामिल हैं। प्रमोशंस के हवाले से आपको बताते चलें कि महकमे आपाशी में अफसरान की प्रमोशन की गई है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। महकमाना प्रमोशन कमेटी की सिफारिशात पर सेक्रेटरी आपाशी ने तरक्कियों की मंजूरी दे दी है। भट्टा चौक की रिहायशी लड़की को चीनी बाशिंदे से शादी करना महंगा पड़ गया। 1 माह बाद फातिमा नामी लड़की चीनी बाशिंदे के चंगुल से निकलने में कायम हो गई। मुतासर लड़की फातिमा दादरस निकली डिफेंस ए पुलिस स्टेशन पहुंच गई। फातिमा का ऐसा कहना है कि वालिदा और जफर नामी शख्स ने धोखे से मेरी चीनी बाशिंदे से शादी करवाई। की दरखास्त में ये भी कहा गया है कि चीनी बाशिंदे की जानिब से अपने दोस्तों के साथ उसको गैर अखलाकी हरकत करने पर मजबूर किया जाता था और इनकार करने पर चीनी बाशिंदे और उसके दोस्तों की जानिब से उसको धमकियाँ दी जाती थी कि उसको चाइना ले जाकर उसके जिस्म के अज़ा फ़रोख्त कर दिए जाएंगे, जिस पर 1 माह बाद मुतासर लड़की फातिमा जो है चीनी बाशिंदों के चुंगल से आज़ाद हुई और इस वक्त सीधी पुलिस स्टेशन डिफेंस से पहुंची, जहाँ पर उसने जफर इकबाल अपनी वालदा और चीनी बाशिंदे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में फातिमा नामी लड़की का यह भी कहना है कि चीनी बाशिंदा जो कि मुसलमान भी नहीं हुआ लेकिन धोखाधड़ी के साथ शादी की गई और 1 माह बाद जो है चीनी बाशिंदे के चुंगल से निकलने में कामयाब हो चुकी है। फातिमा का ये कहना है कि वो अपनी वालदा के पास भी जाना नहीं चाहती, अलबत्ता पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जाए और हुकूमत पाकिस्तान उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके चीनी बाशिंदे जफर इकबाल और उसकी वालदा के खिलाफ अमल में लाए। वालदा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। फातिमा की जानिब से ये अपील की गई है। चीनी बाशिंदा दोस्तों के साथ गैर इखलाकी हरकत पर मजबूर करता था। फातिमा ने इल्जाम आयद किया है कि इनकार पर चीन ले जाकर जिस्म के अज़ा बेचने की धमकियां भी दी जाती थी। मुतासरा लड़की की जानिब से वालदा के पास वापस न जाने की अपील की गई है और हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। फातिमा ने ये मुतालबा किया है। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब पुलिस अफसरान की जानिब से सालीन की दरख्वास्त बगैर कार्रवाई फाइल करने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब पुलिस के थानों में कायम फ्रंट डेस्क को फ्लॉप करने की कोशिश की गई है। आज ही पंजाब का पुलिस कल्चर तब्दील करने में रुकावट बनने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया गया है। DIG ऑपरेशंस CPO फैसलाबाद DPOs को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है, जबकि सालीन की 30% दरख्वास्तें बगैर बताए दाखिले दफ्तर कर दी जाती हैं। रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है और आपको बताते चले कि पुलिस अफसरान की जानिब से सालीन की दरख्वास्त बगैर कार्रवाई फाइल करने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब पुलिस के थानों में कायम फ्रंट डेस्क को फ्लॉप करने की कोशिश की गई है। आज ही पंजाब ने पुलिस कल्चर तब्दील करने में रुकावट बनने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म भी दिया है और इसके साथ ही साथ DIG ऑपरेशंस CPO फैसलाबाद और DPOs को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी सादिर किया है। सालीन की 30% दरख्वास्तें बगैर बताए दाखिले दफ्तर कर दी जाती थी। ये रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद DIG ऑपरेशंस CPO फैसलाबाद और DPOs को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दिया गया है। आपको बताते चलें कि आज ही पंजाब ने पुलिस कल्चर तब्दील करने में रुकावट बनने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। पंजाब पुलिस के थानों में कायम फ्रंट डेस्क को फ्लॉप करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद आज ही पंजाब ने पुलिस कल्चर तब्दीली में रुकावट बनने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है और साथ ही साथ DIG ऑपरेशंस
CPO फैसलाबाद और DPOs को कार्रवाई करने के अहकामात भी साबिर किए गए हैं। IG पंजाब की जानिब से आपको बताएं कि 30% से ज्यादा सालीन की दरख्वास्त बगैर कार्रवाई फाइल की जाती थी। कायम फ्रंट डेस्क को फ्लॉप करने की कोशिश की गई है, जिस पर IG पंजाब ने पुलिस कल्चर तब्दीली में रुकावट बनने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म देते हुए DIG ऑपरेशंस, CPO फैसलाबाद और DPOs को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म सादिर कर दिया है। आपको बताते चलें कि 30% से ज्यादा दरख्वास्तें हैं जिन्हें बगैर बताए दाखिले दफ्तर कर दिया जाता था। आगे बढ़े और आपको बताएं कि काहना में डकैती की वारदात की CCTV फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली है। वारदात गारमेंट्स फैक्ट्री के गेट पर कैशियर के साथ हुई है और इस हवाले से मुकदमा दर्ज है। पुलिस मोटरसाइकिल सवार और 2 डाकू ने आवाज देकर कैशियर नवीद को रोका। फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू पहले हेलमेट उतार कर बात करता है और कैमरा देख रहा है, फिर हेलमेट पहन लिया है। CCTV फुटेज में ये साफ देखा जा सकता है कि पिस्तौल के बिट मारे और 1,52,000 लूट कर फरार हो गया है। CCTV फुटेज में ये साफ देखा जा सकता है। वारदात की CCTV फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली है और वारदात गारमेंट्स फैक्ट्री के गेट पर कैशियर के साथ हुई है और इस हवाले से भी मुकदमा दर्ज है। पुलिस मोटरसाइकिल सवार और 2 डाकू ने आवाज देकर कैशियर नवीद को रोका। फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू पहले हेलमेट उतार कर बात करता है और फिर हेलमेट पहन लेता है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू ने पहले पिस्तौल के बिट मारे और 1,52,000 लूट कर फरार हो गए। CCTV फुटेज सिटी 42 को मौसूल हो चुकी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बागों के शहर में बाग नापैद हो गए हैं। शहर में 1% से भी कम रकबा पार्क्स पर मुश्तमिल है। तकरीबन 80 लाख लोगों को पार्क्स का रुख करने के लिए मीलों सफर तय करना पड़ता है, जिसकी वजह नाकिस टाउन प्लानिंग और बढ़ती हुई आबादी है। हुकूमत को सस्ती तफरीह के लिए क्या इकदाम करने चाहिए और शहरियों को किन किन मुश्किलात का सामना है, बता रहे हैं रेहान तारिक अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में। डॉक्टर्स और फिटनेस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फिट रहने के लिए रोजाना जॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स के इस मशवरे पर अमल करते हुए प्रायोरिटी बेसिस पर पहले इस ट्रैक को कंप्लीट करता है और बाकी बातें बाद में करता है। ट्रैक तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन जिलानी पार्क के इस जॉगिंग ट्रैक पर रोजाना आने के लिए मुझे घर से यहां तक कम से कम 10 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। मेरे शहर की आबादी तकरीबन 1 करोड़ है और 80 लाख लोगों के साथ यही मसला है कि वॉकिंग डिस्टेंस पर उनके घर के करीब कोई जॉगिंग ट्रैक या कोई पार्क मौजूद नहीं है। किस मुश्किल से गुजरना पड़ता है और मेरे शहर में क्या मामला चल रहे हैं इसको लेकर आइए आपको बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे चेंज करना पड़ेगा और फिर वापस आते हैं। जनाब, अब ये मामला आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मुगलिया दौर में मेरे शहर लाहौर को बागों के शहर का नाम दिया गया। सैटेलाइट मैप ऑफ लाहौर इस वक्त मेरे पेश नजर है और इस सैटेलाइट मैप की मदद से मैं आपको समझाता हूं कि इस वक्त शहर के अंदर कुल कितना एरिया ऐसा है जो कवर्ड है पार्क्स के साथ। तो ये लाहौर है जनाब, ये आपको लाहौर का एरिया दिखाई दे रहा है और इसके राइट लेफ्ट जो सबर्बन एरियाज हैं, जो विलेजेस हैं, वो बड़ा ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा है, लश ग्रीन है विद पार्क्स और ग्रीनरी। लाहौर का ये एरिया तकरीबन 1,77,200 एकड़ पर मुश्तमिल है और 1,77,200 एकड़ में से तकरीबन 1,072 एकड़ का जो रकबा है सिर्फ उस पर पार्क्स मौजूद हैं। और अगर परसेंटेज वाइज में आपको बताऊं तो तकरीबन लेस देन 1% ये बनता है, यानी पूरे शहर लाहौर के रकबे में से लेस देन 1% का रकबा ऐसा है जिस पर पार्क्स मौजूद हैं। दिस इज वेरी अलार्मिंग। खाबों के शौकीन लाहौरिये जब तक नाश्ते में पाए, चने और निहारी नहीं उड़ाते, इनका दिन मुकम्मल नहीं होता। और मजे की बात यह है कि नाश्ते की मेज पर भी दोस्त एक दूसरे को मशवरे दे रहे होते हैं कि जॉगिंग किया करो, सेहत का ख्याल रखा करो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस जगह पर बैठे ये नाश्ता कर रहे हैं ये अजीज भट्टी टाउन है और अजीज भट्टी टाउन के अंदर तकरीबन 12 पार्क्स हैं। ये जाए तो जाए कहाँ? या तो सड़क पर घूमेंगे जहां आलूदगी अपने फेफड़ों में उतारेंगे, या फिर पार्क तक पहुंचने के लिए मीलों पैदल सफर करना पड़ेगा। दोनों साजगार हालात नहीं है। शहर में कुल 9 टाउन्स हैं और 9 टाउन्स में आबादी की तनासुब से पार्क्स की तादाद का डेटा आपके सामने है। अजीज भट्टी टाउन से निकलकर मैं इस वक्त गुलबर्ग टाउन में मौजूद हूं। लोगों के लिए 230 पार्क्स बनाए गए हैं। मेरी राइट साइड पर भी एक पार्क है और चंद कदम के फासले पर जब मैं आगे बढ़ता हूं तो लेफ्ट साइड पर भी मुझे पार्क दिखाई देता है। ये सब ग्रीन एरिया है।
इसे अनइक्वल टाउन प्लानिंग का मजहर भी करार दिया जा सकता है, जो बाकी टाउन से बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी बयान कर रहा है। याफ्ता ममालिक हैं, उनके अंदर एक वर्टिकल गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, कि जब वर्टिकल ग्रोथ शुरू होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पर फिर वर्टिकल गार्डनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। शम्मा बुझाई तो कई और जला ली, हम गर्दिशे दौरा से बड़ी चाल चले हैं। तय तो ये था कि जहाँ एक दरख्त गिराया जाएगा वहाँ मजीद 10 दरख्त लगाए जाएंगे, लेकिन ग्रीन बेल्ट्स पर लगे ये आराइशी पौधे हुकूमती माहौल दोस्त पॉलिसियों का मुंह चढ़ा रहे हैं। काम ये हुआ कि जो हमारे पास अवेलेबल जगह थी उनके ऊपर हमने ज्यादातर काम डेकोरेटिव स्टाइल में किया। इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था इस बूढ़े शजर से। शहर लाहौर को फिर से बागों का शहर बनाने के लिए हकीकी टाउन प्लानिंग और माहौल दोस्त पॉलिसियों की जरूरत है, ताकि मेरा शहर फिर से बागों का शहर बन जाए। कैमरामैन जाफर भट्टी और काशिफ बेग के साथ रेहान तारिक, लाहौर। ईस्टर के मौके पर तफरीही मकामात पर शहरियों का भरपूर रश नजर आ रहा है। बड़ी तादाद में मसीही बिरादरी ने गुलशन इकबाल पार्क का रुख किया है और पार्क में बच्चे झूले झूलते रहे और रिवायती खाबों से महजूज होते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मनाजिर हैं गुलशन इकबाल पार्क के, जहां पर मसीही बिरादरी की कसीर तादाद मौजूद है। जो बच्चे हैं वह रिवायती खाबों से और झूलों से महजूज होते नजर आ रहे हैं। आज ईस्टर का त्यौहार है और मसीही बिरादरी की बड़ी तादाद गुलशन इकबाल पार्क में मौजूद है और वहां पर झूले झूलते बच्चे और रिवायती खाबों से महजूज होते भी नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि ईस्टर के मौके पर तफरीही मकामात पर शहरियों का भरपूर रश नजर आ रहा है और इसी हवाले से बड़ी तादाद में मसीही बिरादरी ने गुलशन इकबाल पार्क का रुख किया है। पार्क में बच्चे झूले झूलते रहे और रिवायती खाबों से खूब महजूज होते हुए नजर आ रहे हैं। मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से मसीही बिरादरी की एक कसीर तादाद है जो कि गुलशन इकबाल पार्क में मौजूद है और बच्चे जो है झूले झूलते दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ रिवायती खाबों से भी महजूज होते नजर आ रहे हैं। मसीही बिरादरी की एक कसीर तादाद है जो कि तफरीही मकामात पर मौजूद है और इन्हीं मकामात में से एक मकाम है गुलशन इकबाल पार्क का, जहां पर मसीही बिरादरी जो है उनकी कसीर तादाद मौजूद है, झूले झूलते दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ रिवायती खाबों से भी महजूज हो रहे हैं। बच्चे जो हैं वो झूले झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ईस्टर का त्यौहार जो है बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मसीही बिरादरी की जानिब से एक कसीर तादाद है जिन्होंने रुख किया है गुलशन इकबाल पार्क का और वहां पर झूलों से महजूज होते दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ रिवायती खाबों के स्टॉल्स का भी इनेकाद किया गया है और उनसे महजूज होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि ईस्टर के मौके पर तफरीही मकामात पर शहरियों का भरपूर रश नजर आ रहा है। कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं जानेंगे हसन खालिद से। हसन खालिद, बताइएगा किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं बच्चे? या बिल्कुल, मसीही बरादरी का आज सबसे बड़ा त्यौहार ईस्टर जो है वो इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मसीही बरादरी जो है उसको सेलिब्रेट कर रही है। आज दिन भर मसीही बरादरी की जानिब से मुख्तलिफ तकारीब का सिलसिला जो है वो जारी रहा। दिन का आगाज़ चर्चिस के अंदर जो है वो दुआया तकारीब से हुआ और अब शाम के वक्त मसीही बरादरी मुख्तलिफ पार्कों पर पहुँच चुकी है और अपने बच्चों के हमरा, अपने फैमिलीज़ के हमरा खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल पार्क में, जहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में लोग ईस्टर को सेलिब्रेट करने के लिए पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर बच्चे मुख्तलिफ झूलों से महजूज हो रहे हैं, खाबे खा रहे हैं और आज ईद का दिन जो है वो अपने अपने अंदाज से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या किया आज सारा दिन उन्होंने और किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सबसे पहले तो आपको ईस्टर की मुबारकबाद। क्या कहेंगे, किस तरह से आपने इस दिन को आज सेलिब्रेट किया? जी, हम जब सुबह हुए तो पहले हम गए हैं चर्च जाकर हमने इबादत की, उसके बाद घर गए हैं, घर से फैमिली को लेकर अब हम पार्क की तरफ आ गए। हाँ जी, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है इस दफ़ा, तो बहुत अच्छा है। अभी तक बच्चों ने क्या क्या एंजॉय किया? अभी आए हैं तो अभी ये बच्चे झूले ले रहे हैं, तो अभी आप क्या कहेंगे, क्या मज़ा आ रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है इधर, बहुत अच्छी सिक्योरिटी की हुई इस वक्त इन्होंने, बहुत मज़ा आया इधर। ठीक है, बाजू से बात करेंगे आपसे। क्या कहेंगे, आज ईस्टर है, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के दिन? हाँ जी भाई, अच्छा एंजॉय है, अभी आए अभी झूले लेने। कुछ खाबो शाबो का भी प्रोग्राम है खाने शाने का? हाँ जी भाई। भजन, आप क्या कहेंगे, मज़ा आ रहा है आपको आज? मैं आया हूँ, क्या अच्छा। अभी तक एंजॉय किया? अभी तो अभी आए हम लोग। बच्चे कुछ मेरे साथ मौजूद हैं और आज का दिन तो वैसे
बच्चों का दिन ही होता है और अपने फैमिली के साथ बच्चे यहाँ पहुंचे हुए। बेटा क्या कहोगे, मजा आ रहा है आज? ठीक है, बच्चे झूलों से महसूस हो रहे हैं और रवायती खाबों से भी खूब एंजॉय किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हज़रत खालिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शायर मशरिक, मुफक्किर और मुदब्बर इल्लामा इकबाल का आज 81वां यौम वफ़ात है। अजीम शायर ने बरे सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्वाब देखा और दो कौमी नजरिया की बुनियाद रखी। शायर मशरिक इल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए और 21 अप्रैल 1938 को दार फानी से कूच कर गए। फलसफियाना और मुफक्किराना सोच, दूर अंदेशी जैसी खुसूसियात ने इकबाल की शायरी को आरिफाना मकाम बख्शा।